Guys, welcome back to room number 18. In this video, we'll be covering economics. Economics में there are mainly three parts: IED, microeconomics, and macroeconomics. All three are very important. Microeconomics से सबसे ज़्यादा portion होगा, but IED and micro के भी काफ़ी questions होंगे. And we'll be starting with microeconomics. Microeconomics में the thing is only 11th का course है. Everything is basic. सब कुछ तुम्हें बहुत ज़्यादा वापस सिर्फ रिवाइज करना है. देयर इज़ नथिंग टू डिफ़िकल्ट. जो भी पार्ट्स है जैसे माइक्रो वर्सेस माइक्रो क्या डिफरेंसेस है, देन डिमांड सप्लाई, दिस इज़ व्हाट यू डन. एंड मैक्रो में तुम्हारा वो वापस ब्रशअप हो ही गया था मोस्ट प्रॉब्ली. तो फिर एंड फॉर द बुक्स फॉर माइक्रो संदीप गर्ग इज रिकमेंडेड. उसमें देर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, MCQs, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग. एंड देन देर आर पावर बूस्टर्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर. बीच में बॉक्सेज है जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट करते हैं. दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज. Then so we'll move to the units. There are 4 units. The first is the basic economic theory का explanation, what economics is, micro versus macro. इसमें वही match the following वाले questions आ सकते हैं. Which of the how many statements are true, MCQs वाले questions आ सकते हैं. Positive और normative कौन से वो वाले questions काफ़ी आ सकते हैं इसमें से. Then there are the central problems of economy, how, what to produce, how to produce. This can also come. Then there is the opportunity cost. To वो भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉर्चुनिटी हैज़ द हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और द लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देन देयर इज़ द यूटिलिटी एनालिसिस जिसमें सारे कर्व्स, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन टू कमोडिटी केस, एंड देन एनालिसिस, लॉज ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी, वो सब आएगा. इसमें क्वेश्चन वुड बी लाइक डू कर्व्स इंटरसेक्ट विद एनी ऑफ द एक्सेसेस, डू बोथ द कर्व्स intersect each other, what is the point of intersection, what are the laws that are being shown when the curves are shifting to the right or the points are moving up and down the curve, contraction is. Then we'll have the demand. Then the properties of the demand curve, why, what is the price demand theory, how it is affected by the price. That is the main thing. Then or law of demand है, इसमें भी questions आ सकते हैं that if contemporary goods का and complement goods का, supplementary goods का question कि demand of a good, how is it affecting the demand of any other good, और main questions ये रहेंगे. and what is the upward and downward movement कैसे होता है कौन से curve का. this is also. then exceptions भी होते हैं, those are also very important to remember. then shifting of the curve and expansion and contraction is also very important. then there is a supply law of supply होगा as same as demand. कर्व्स क्या हो रहे, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे. देन वील हैव द इक्विलिब्रियम पॉइंट. इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, हाउ डू वी गेट इट, एंड देन उसमें हाउ इफ इट मूव्स, हाउ इट कम्स बैक टू इक्विलिब्रियम, हाउ इट गोज अप, हाउ इट गोज डाउन. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन दिस इज द देन देयर इज प्राइस इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसका फॉर्मूलाज होंगे एब्सोल्यूट में, परसेंटेज में, फिर उसका लाइन मेथड होगा. ऑल ऑफ द मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू. उसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स आएंगे या तो ग्राफ, हाउ टू एनालाइज, उसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि टू द ग्राफ विल बी गिवन टू यू एंड हैव टू आइडेंटिफाई अ सिंगल पॉइंट और अ कपल ऑफ पॉइंट्स. देन दैट इज ऑल फॉर द माइक्रो पार्ट. नाउ विल मूव ऑन टू IED. IED इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. उसमें मोस्टली इट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वाला, एंड देन all the other chapters like infrastructure, poverty. उसमें there are chapters which are not done in the NCERT syllabus which will be asked, like poverty and infrastructure. You need to revise, go through them once. You need to go have a better look on them, those chapters rather than the chapters that you've done already, because उनमें सिर्फ revision चाहिए होगा, because boards में those will be very clear to you after boards. Then for the books, NCERT is recommended. उसमें से most questions आते. If not, Sandeep Garg is also very good. उसमें everything is in points, everything is concise. So if you're better with points rather than paragraphs, then I would suggest to go for Sandeep Garg. Then उसमें जो boxes हों, those are very important questions आ जाते हैं उधर से. and no need to memorize all the data. जो important parts है वही करो. then years and dates are important, those can come. then points के जो main headings होते हैं, those are very important, and we'll also be providing notes for this that will be given in the description below. then जो 2 chapters है, those are not coming. there's a note come in the syllabus for NCERT, but वो आएंगे in the CUET part, are poverty and infrastructure. Poverty में there are topics like types of poor people, relative absolute poverty, jail cost, which are also very important to concept of poverty line. इन सबको you have to go through once. अगर इन पर नहीं हो to find some YouTube videos जिससे तुम्हें clear हो जाइए अगर तुम खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो. Then there's infrastructure. There's health infrastructure, indicators of health. These are also very important. There's also ISM.
या एंड देन जो भी इजी चैप्टर्स है जैसे पोल्यूशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एंड दो चैप्टर्स उनको भी कर लो. अगर इजी चैप्टर्स हो जाए, इजी चैप्टर में से क्वेश्चन आए तो मैं आने चाहिए. डोंट गो भी कि ईजी है तो रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन पर ध्यान दे देना. एंड दैट इज़ ऑल फॉर आई डी इज़ अ वेरी थियोरेटिकल कोर्स. उसमें तुम्हें ज़्यादा अपना दिमाग लगाना नहीं है, बस रीड इट, प्रैक्टिस इट, रीड इट जितनी बार रीड हो पा रहा है. फाइनल पार्ट नाउ इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट. इसमें यू हैव टू मोर एनालिसिस का दिमाग. रॉट वर्क से कुछ नहीं होगा, याद करने से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू रीड, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते रहेगा, उससे अच्छा रिविजन हो जाएगा. इसमें बुक्स रिक्वायर्ड आर संदीप गर्ग. इफ संदीप गर्ग नहीं है देन ओनली गो फॉर TR Jain, बट आई वुड सजेस्ट गेट योर सेल्फ द संदीप गर्ग बुक. इट विल हेल्प वेरी मच. एंड इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स नहीं है. एवरीथिंग इज जस्ट प्रैक्टिस एंड रीडिंग करोगे और क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी फॉर यू. द फर्स्ट यूनिट इज नेशनल इनकम में मेन थिंग इज यू हैव टू मैप आउट द क्वेश्चन. द सम्स होंगे मोस्टली कि इनकम निकालो, देयर बी अ लॉट ऑफ थिंग्स गिवन. यू हैव टू मैप द क्वेश्चन कि कौन सा क्या कहाँ पे आएगा, क्या आएगा, ये अपने दिमाग में निकालो पहले, एंड देन ओनली ट्राई सॉल्विंग इट, और देन ओनली पुट द आंसर. कैटेगराइजेशन ऑफ गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द फाइनल गुड, व्हाट इज द इंटरमीडिएट गुड, इसका क्वेश्चन आएगा ही. विच ऑफ दिम आर इंटरमीडिएट और विच ऑफ दिम आर फाइनल गुड्स. कॉन्सेप्ट्स शुड बी वेरी क्लियर इन दिस, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी सम नहीं होगा. एवरी मेथड शुड बी डन. एक्सपेंडिचर, इनकम, सारे इंपॉर्टेंट है सबके. वो आ सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच स्टेप कम्स फर्स्ट एंड which method should be used when का जो भी things will be provided to you. Then सारे aggregates याद रखने. NDPFC, NNPFC सारे आएंगे. which is national income, which is not, which is what. domestic income और national income के बीच में difference. factor income from abroad निकालते हैं, उसमें कौन सा include होता है, कौन सा नहीं होता है, उसके भी questions आएंगे. these are all very important questions. इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द बिगर यूनिट्स. इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे. इसमें से वो भी आएगा स्टार्टिंग का द माइक्रो पैराडॉक्स, उसका भी क्वेश्चन आ सकता है. जो स्टार्टिंग में माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस है वो भी आ सकता है. दैट इज सिमिलर टू व्हाट यू विल बी डूइंग इन माइक्रो, बट इसको भी एक बार थोड़ी रिवाइज कर लेना. द सेकेंड यूनिट इज़ मनी एंड बैंकिंग. मनी एंड बैंकिंग में मेनली क्वेश्चन आ सकते हैं मनी मल्टीप्लायर के. व्हाट इज़ द मल्टीप्लायर, जिसमें थिंग्स द वैल्यूज विल बी गिवन टू यू. कैलकुलेट द मनी मल्टीप्लायर, कैलकुलेट द फाइनल डिपॉजिट्स. देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, उसके क्वेश्चन आ सकते हैं. देन मनी सप्लाई, व्हाट इज़ M2, M1, M2, उन सब में डिफरेंसेस क्या है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन यूजेस ऑफ मनी, उसका क्वेश्चन आ सकता है. देन द फंक्शंस ऑफ द बैंक्स, बैंकिंग के लाइक द फंक्शन ऑफ बैंक्स, फंक्शंस ऑफ RBI आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके सारे फंक्शन में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. कौन से एवरी फंक्शन इज इंपॉर्टेंट टू डू. एंड देन उसके ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ऑल द रेट्स, ऑल द रेशियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके क्वेश्चन आ सकते हैं. SLR, देन बैंक रेट, रेपो रेट, इन सब से क्या चेंजेस हो सकते हैं. हाउ डू दे डू एक्सेस मनी सप्लाई एंड डेफिसिट इन मनी सप्लाई, हाउ डू दे करेक्ट इट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू. वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन आ सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन दिस इज़ ऑल फॉर दिस यूनिट. यूनिट 3 इज़ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. इसमें AS है, AD है, ऑल दीज क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट. इसमें देर आर मेनी ग्राफ्स. ग्रो थ्रू ऑल द ग्राफ्स वेरी केयरफुली. देर आर डिफरेंट ग्राफ्स. क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा ग्राफ कौन सा है. ग्राफ का क्वेश्चन इसमें आने का वेरी गुड चांस है. देन इसमें द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, उसके क्वेश्चन आ सकता है. देन द इसके न्यूमेरिकल्स भी क्लियर होने चाहिए. इनकम के, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, कौन सा क्या क्वेश्चन है. ADS, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आएगा. देन द मूवमेंट ऑन द ग्राफ, हाउ इट इंटरसेक्ट्स एंड बाय हाउ द ग्राफ स्टार्ट्स अबव जीरो, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे. इसमें देर विल बी अ लॉट ऑफ बॉक्सेज. देन द पावर बूस्टर जो भी पीछे हो, द एक्सरसाइजेज एट द बैक आर वेरी इंपॉर्टेंट. MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, सब सही से करना. ट्रिकी क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं. द इफेक्ट्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस यूनिट. देन नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, इज द बजट. इसमें से द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ द दिस इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट, सो नॉट मेनी क्वेश्चंस, बट रिवाइज कर लेना सब. कैटेगराइजेशन ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स कैसे होंगे, बिकॉज उससे ही सारे सम्स होंगे. सम्स आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन है. कौन से डेफिसिट्स कौन से, किस में इंटरेस्ट पेमेंट्स आते हैं, किस में कौन सा एक्सपेंडिचर आता है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स कौन से हैं, वैसे क्वेश्चंस आएंगे. कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, वैसे क्वेश्चंस आएंगे. यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद व्हाट इज़ व्हाट एंड कौन सा डेफिसिट में जाएगा. वेरी स्मॉल यूनिट बट गो थ्रू इट वंस, वेरी क्लियर हो जाएगा जल्दी है. देन द फाइनल यूनिट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इन फॉरेक्स एक्सचेंज रेट. इसमें BOP में द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड व्हाट थिंग गोज इनटू व्हाट अकाउंट, व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ विच अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट,
देन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड वो सब वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा किस में से एडिशन होता है, कौन सा सब्ट्रैक्शन होता है, उसके क्वेश्चन आएंगे. कौन सी चीज़ कहाँ जाती है, उसका क्वेश्चन भी आएगा. एंड देन व्हेन इट इज़ अ डेफिसिट सरप्लस, वो सरप्लस के बेनिफिट्स क्या है, डेफिसिट के बेनिफिट्स क्या है, वो भी जाना, उसके भी क्वेश्चंस आएंगे. इक्विलिब्रियम में है नहीं है, हाउ डू वी ऑटोनॉमस एंड द अदर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से प्रॉफिट के लिए होते हैं, कौन से प्रॉफिट के लिए नहीं होते. देन वी मूव ऑन टू फॉरेक्स. फॉरेक्स में टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, गोल्ड स्टैंडर्ड एंड देन द फ्लोटिंग, देन डर्टी फ्लोटिंग क्या होता है. इसमें ग्राफ्स आ सकता है. ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Then move on to forex. Forex exchange rate में ग्राफ्स आ सकते हैं. What is the movement of graph? Appreciation and depreciation के क्वेश्चन आएंगे. Appreciation and depreciation of home currency, how it affects the foreign currency. Then the different types of exchange rate, gold standard, and how it was shifted to the exchange rate that we have now. That is also very important. Why it was shifted and what is the unit of measurement now. वो सब क्लियर होना चाहिए. When it was exchange, इसमें date is, that date is also very important. उसको क्वेश्चन आ सकता है. Then graphs में what is the movement, very important. कौन सा कैसे मूवमेंट कर रहा है. Okay guys, that is all for the economics video, and just to remind you again, सारे question banks and notes are given in the description box below. For any doubts you can contact us. Stay connected, look out for the next videos, and thank you. यार मेरा नहीं आ रहा हार्ट शिट. फेक लव है भाई इसका. GGS बच के रहना. Oh, let's go.